with abstract classes. I hope you guys understood the class and the object part because we would need that here. Since you guys understood class, I will jump on to the keyword abstract. Abstract or abstraction basically means hiding the unnecessary information and only showing what is essential. Like as it's like we are hiding the implementation and only showing the necessary part. So, and we can implement this using two ways, using the abstract keyword that I have used here, and we can also do that by using interfaces, which is pure abstraction. So, अगर मैं अभी आपको बोलूंगी कि what are the attributes of a student class, like what are the features a student class can have, आप लोग बोलोगे name, roll number, marks, section, all those things. Like you know what features a student class can have. So this is what that example means. Like a student class can have name, roll number, and marks and everything. But when I tell three students like draw a shape, since I didn't specify any shape, कोई circle बना सकता है, कोई triangle बना सकता है, कोई rectangle बना सकता है. But all of these people are doing one same thing, that is drawing. भले ही वो draw कुछ और कर रहे हैं, but they are implementing the same method. So is it an efficient way to like write separate classes for each of these work and like have the draw method in them? I would suggest no. That is not useful. यहाँ पे abstract classes का काम आता है. Here we have the abstract classes में abstract methods भी हो सकते हैं और normal methods भी हो सकते हैं that we have discussed. So it can have normal methods like a void display. It will print that this is a shape, and then we have the abstract method. Coming on to abstract method बस define करता है कि हाँ हमें करना क्या है, कैसे करना है वो हम later on जब inherit करता है classes तो पता चलता है. Like here we have only declared the method, and the implementation will be done in the next two classes. And this is the constructor. I hope you guys are clear with that. This is the no arguments constructor. It will just print that a shape constructor is called. Here later on in the class circle, we are extending the shape class. अभी भैया ने हमें पढ़ाया था inheritance. तो वो ये यहाँ हो रहा है. Inheritance is done by using the keyword extends. So here we are extending the shape class into the circle class, and here we are using the same draw method. Now when I select the draw method, it's pointing to this as well. Why? Because it is inheriting the same method from this shape class. यहाँ पे सिर्फ उसका declaration था, यहाँ पे उसका implementation भी है. Now that person is drawing a circle, and then similarly इसका भी एक circle constructor है. This is you guys can ignore the constructors over here. I've just created to like make you guys understand. And again another person wanted to draw a triangle, so उसने भी same shape method extend किया and same draw method call किया and drawing the triangle. So अभी we are done with the inheritance. यहाँ पे हम single inheritance ही use कर रहे हैं. जैसे कि circle class circle class का एक ही parent class है और triangle class का भी एक ही parent class है, that is shape. So यहाँ पे हमने अपना main method declare किया है. यहाँ पे we have created a reference variable of s of type s. Let me be clear with that. The reference variable is of type s, but the object is of type circle. अभी भैया ने अभी just mention किया था कि reference variable same भी हो सकता है, different भी हो सकता है. So reference variable is of type shape and the object variable is of type circle. So why we have created the reference variable of type shape? Because जो हमने method declare किया है वो हमारा shape class में है. Without the shape class we cannot access that method. Also the main features of abstraction is that कि हम लोग इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते. यहाँ पे मैंने भले ही रेफरेंस वेरिएबल शेप का लिया है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है वो मैंने शेप टाइप का नहीं क्रिएट किया. बिकॉज व्हाई? क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता. अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा एरर दिखाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड. Okay, and also like abstract methods are only created for the purpose of extending them. ऐसे नहीं कि मन किया तो abstract class create कर दिए, नहीं. It's only created for the purpose of extending them कि multiple methods उसको inherit कर सकते हैं.
Again, now that we have created the reference variable of s and created the object, so s dot display, that means कि हम लोग shape class के display method को access कर रहे हैं, और s dot draw. अब ये जो s dot draw है ना, ये compile time पे check करेगा कि ये जो ड्रॉ मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है शेप क्लास में, तो वो वहां पे जाएगा ही नहीं. ये हमारे सर्कल क्लास के ड्रॉ मेथड पे जाएगा और वहां पे सर्कल ड्रॉ करेगा, आई मीन प्रिंट करेगा. Similarly, we have done the same for the triangle class. We have created the reference variable of type s and वो triangle object को point कर रहा है, and again the same, the display method and the draw method. Let us try and run this. ओके हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले शेप कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. तो जब सीक्वेंस इसका क्या होता है, जब हम ये लिखते हैं ना, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, तो ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है. चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वहां से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो फिर वापस आता है, फिर से चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट करता है, एंड देन इट डज द रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन. दैट इज व्हाई द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर शेप इज कॉल्ड, then the child class constructor is called, and then it's printing s dot display से this is printing, this is a shape, and s dot draw से it is printing drawing circle. Similarly, the same happens for the triangle. Okay. अभी कैन एनीवन से कि एक सर्कल और ट्रायंगल में क्या डिफरेंस हो सकती है? एनीबडी? साइड्स. यस, साइड्स. या शेप हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, बट या साइड्स इज अ गुड पॉइंट. सो अभी अगर मुझे साइड्स मेंशन करना हो, सो ऑब्वियसली सर्कल में तो साइड्स नहीं होते, तो वो ट्रायंगल क्लास में होती है. और अभी अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक साइड्स मेथड भी बना के देखूं, मुझे यहाँ पे एक साइड्स मेथड भी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली शेप क्लास के अंदर ही साइड्स डिक्लेयर कर दूंगी. बट अगर मैं शेप क्लास के अंदर भी मैंने साइड्स मेथड डिक्लेयर किया, वो तो फिर सर्कल क्लास में भी हो जाएगा, विच इज सिंटैक्टिकली करेक्ट. हम सिंटैक्टिकली ये सब कर सकते हैं, बट लॉजिक ये करेक्ट नहीं है. सिंस सर्कल का कोई भी साइड्स नहीं होता, तो इट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे हमारे पास आता है इंटरफेसेस. अभी हम ये तो सुन चुके हैं कि मतलब एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकता है. जब हमें एक चाइल्ड क्लास दो पेरेंट्स से मतलब इनहेरिट करना होगा, मतलब वन चाइल्ड विल हैव टू पेरेंट्स, वहां पे इंटरफेसेस आते हैं. क्लासेस ये चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, सो वहां पे इंटरफेस का काम आता है. इंटरफेस, जस्ट अ सेकेंड. ओके, हाँ. सो यहाँ पे हमारा साइड्स मेथड है. इफ यू कैन सी द इंटरफेस पॉलीगॉन, यहाँ पे हमारा साइड्स मेथड है जो हमें चाहिए था फॉर द ट्रायंगल क्लास. फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे सर्कल क्लास नहीं इम्प्लीमेंट किया है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड सर्कल क्लास सिर्फ एक क्लास से इनहेरिट कर रहा है. तो जो इम्प्लीमेंट्स होता है जो हमारा इंटरफेस होता है, वो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करता है. और एज यू कैन सी, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम शेप अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, बट इट आल्सो नीड्स टू ऐड द फीचर्स ऑफ द पॉलीगॉन क्लास. उसमें एक मेथड है साइड्स, इसको वो एक्सेस करना है. दिस इज व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट पॉलीगॉन इंटरफेस. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वन, कि ये हमारा एक शेप क्लास है, उसमें एक डिस्प्ले मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये इंटरफेस है, ये पॉलीगॉन है. ऑल्सो इंटरफेस के मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं. दैट इज वे हमें उनको एक्सेस करने के लिए वापस पब्लिक यूज करना पड़ता है. और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इधर ड्रॉ, और वो सेम चीज यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है. यहाँ पे जस्ट डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है. सिमिलरली यहाँ पे भी सिर्फ डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन है. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड यहाँ तक. एनी डाउट्स? दीदी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी शेप या फिर किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, राइट? हम लोग जब भी एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस यूज करते हैं ना, वी आर डूइंग इट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग देम एंड इम्प्लीमेंटिंग देम. हम ऐसे ही नहीं यूज करते. सपोज इफ मतलब if I tell you about a car can have a lot of features, like it can have a music system, it can have
it can have a engine. But when I tell you about like a mobile phone, it can also have a music system. So म्यूजिक सिस्टम तो एक ही है, बट इट इज इनसाइड, मतलब वो दो दो जगह है, वो कार में भी है और वो मोबाइल फोन में भी है. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस फॉर लाइक हर एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करने से अच्छा है वी कैन एक्सटेंड द सेम क्लास, लाइक वी कैन एक्सटेंड द सेम म्यूजिक क्लास एंड extend it into the another class, that is the car class, and also in the music class. I hope you're clear. या दीदी एक और चीज़ यहाँ पर था कि इंटरफेस का जो पार्ट है, सॉरी इंटरफेस नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट का जो पार्ट है वहाँ पर बॉडी के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते हैं. Actually interface class, abstract class जो है ना, it can have both normal methods and abstract methods. अगर कोई भी एक normal class के अंदर अगर एक भी abstract class हुआ ना, तो we are bound to declare it abstract as well. मतलब अगर यहाँ पे ये abstract word draw नहीं होता तो we could have removed this abstract keyword. हम इसको ऐसे रख सकते थे, but since it has like at least one, एक है यहाँ पे, तो we have to declare it abstract. Okay. Okay. सो अभी हम यहाँ पे मेन क्लास पे आते हैं, इंटरफेसेस क्लास पे. यहाँ पे हमारा मेन मेथड है एंड वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायंगल 1 एंड रेफरेंस टाइप भी हमने सेम रखा है. रेफरेंस टाइप भी हमने सेम रखा है एंड वी आर एक्सेसिंग द डिस्प्ले मेथड फ्रॉम द शेप क्लास एंड ऑल्सो द ड्रॉ मेथड इन द ट्रायंगल क्लास जहाँ पे हमने मेंशन किया है एंड ऑल्सो द साइड्स. Sneha, we have a doubt in the chat. Like, could you address that? Yeah, When to use abstract classes and when to use interfaces, and what is the difference between them? Okay, yeah. Abstract classes and interfaces. Okay, abstract classes you can use when you want to implement both the methods, like abstract methods भी चाहिए और non-abstract methods भी चाहिए, like normal methods. और interfaces are strictly abstract, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें होंगी उसके अंदर variables भी final, static और public होती है. तो और उसके अंदर जो methods होती है सारी की सारी methods abstract ही होती है. So मतलब interfaces are like very heavy, like मतलब उसमें तुम changes नहीं कर सकते हो, but you can have normal methods inside abstract. And also I'll come to this point that हम ऑब्जेक्ट्स दोनों में ही नहीं क्रिएट कर सकते. हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते और इंटरफेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बट हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, जो कि we are not allowed to do in the interface. Here we are allowed to declare the interface, the constructor in the abstract class, but we are not allowed to do the same in the interface. This is why, because जो हमारा abstract class होता है वो that gets inherited by, मतलब वो extend, जो हमारा abstract class होता है वो आगे जाके काम करता है. मतलब जो हमारा सर्कल क्लास होता है ना, सर्कल क्लास में भी एक सर्कल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा शेप का ऑब्जेक्ट भी होगा. तो जो सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जो चीजें होंगी इनिशियलाइजेशन के लिए वो हमारा कंस्ट्रक्टर करेगा. उसके लिए हमें शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा टू इनिशियलाइज दोस थिंग्स. आई हैव नॉट यूज्ड द एग्जांपल ओवर हियर सिंस वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. आई हैव मेड इट क्लियर सिंपल. और this is why we are using the constructor over here in the abstract class, but we are not doing the same for the interface, since interface बहुत like interface में all the like methods are like static and like वहाँ पे ज़्यादा कुछ changes नहीं कर सकते हो. You can just extend those things and then you can add those things, but for the abstract class you can like add concrete methods and variables. Yeah, so that can be done. Okay, so I'll run this code. This is the shape. I hope you guys understand. ये क्यों print हो रहा है? ये display method call कर रहा है shape का, which has like a comment. This is a shape, and then we are drawing the triangle, and the triangle has 3 sides. I hope you guys clear with that. This was the abstraction. आगे हम जाके इसके बारे में और पढ़ेंगे. Any more questions? दीदी इंटरफेसेस पार्ट्स को जो हम यूज़ करते हैं क्या वो सिर्फ शेप्स के लिए यूज़ हो सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं?
नहीं मतलब इंटरफेस लाइक फॉर्म योर क्वेश्चन इन अ बेटर वे, लाइक जो नहीं समझ में आ रहा है। दीदी जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ना कि शेप वन इस तरह से हाँ, पॉलीगॉन, तो क्या इंटरफेस को हम हमेशा शेप्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं? जस्ट इंटरफेसेस कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सपोज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैंक, तो हम बैंक में बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक मतलब रखते हैं पैसा एंड ऑल सब करते हैं। सो वी कैन क्रिएट लाइक पर्टिकुलर क्लासेस फॉर दैट एंड वी कैन लाइक सेट इट टू कि हाँ ये हमारा इंटरफेस है। तो ये हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जहां पे भी हम ये यूज कर रहे हैं ना, दैट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड, because without extending I don't think it has any purpose. कुछ और? तो दीदी इंटरफेस भी जब हम लोग यूज करेंगे उस वक्त एक बॉडी लिखने के बाद आखिर में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है, तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ना लिखें तो वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी। Sorry, कहाँ abstract word, like can you point here? हाँ जी। हाँ, इसका यहाँ पे तुम बॉडी लिखने बोल रहे हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हम लोगों ने अगर नहीं लिखा तो फिर यहाँ जो बॉडी में जो चीज़ हम लोगों ने प्रिंट करने के लिए यूज़ की है तो वो प्रिंट नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मेथड्स एक्सेस करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अच्छा तुम ये बोल रहे हो ना कि लाइक ये वाली मेथड प्रिंट होगी कि नहीं होगी? हाँ मतलब हाँ, अगर ये बस इसीलिए हो रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे इस मेथड को एक्सेस किया है। सी टी डॉट डिस्प, यहाँ पे ये मैंने मेथड कॉल किया है एंड मैंने ये एक्सेस किया है। लाइक एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं एंड वेन एवर वी आर कॉलिंग अ पर्टिकुलर मेथड, हमें यहाँ से कॉल करना होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट तो वो अपने आप मेथड अपने आप कॉल हो जाती है। सिर्फ एक मेथड अपने आप कॉल होती है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर विच इज अ स्पेशल मेथड जो यहाँ पे कॉल होती है। ठीक है? ओके ओके, एनी मोर डाउट्स? एनीबॉडी, एनी मोर डाउट्स? जी जो मेन क्लास में हमने ड्रॉ मेथड लिखा है, अगर हम लोग वो नहीं लिखते शेप क्लास में, शेप क्लास में हमने ड्रॉ मेथड नहीं लिखा है, अगर ये बोल। शेप वन में अगर वाइट ड्रॉ नहीं लिखते तो हाँ, हमारा ड्रॉ प्रिंट होता नहीं एक्सटेंड नहीं क्लास में। प्रिंट होता, नहीं प्रिंट होता, बिकॉज वी आर डूइंग इट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंड, लाइक इम्प्लीमेंटिंग इट ना। एक्सटेंड करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब यहाँ पे डिक्लेरेशन ही नहीं होगा तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे बताएंगे? तो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको हमें पहले डिक्लेयर करना होता है। तो दिस इज डूइंग द डिक्लेरेशन पार्ट एंड यहाँ पे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट विल थ्रो एन एरर, मैं अभी करके भी दिखा सकती हूँ। लाइक इफ यू से कि ऐसे हो रहा है तो ये एरर आ जाएगा। मतलब ये रन तो कर जाएगा बट इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। अरे, ओ आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग। वर्क तो करना नहीं चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ही क्लास में उसको इम्प्लीमेंट किया है। जब भी हम इंटरफेस लेते हैं ना, तो हम उसको एक बार मल्टीपल क्लासेस में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो तब और अच्छे से समझ में आएगा। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू लाइक प्रैक्टिस हैंड्स ऑन, ताकि आप भी अपने खुद के एज केसेस प्रैक्टिस कर पाओ एंड चीजें बेटर कर पाओ। आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग बट या आई विल श्योरली गेट बैक टू यू ऑन दैट। लेकिन दीदी अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप वन की जगह अगर पब्लिक क्लास शेप वन होता तो हमें ये एब्स्ट्रैक्ट वाइड शेप ड्रॉ नहीं लिखना पड़ता ना? नहीं, मतलब अभी यहाँ पे तो तुम मतलब सिंपली कर सकते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ का बॉडी भी देना पड़ता, बिकॉज ये पब्लिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है। अब अगर ये नॉर्मल क्लास है तो फिर यहाँ पे ये सिर्फ वॉइड ड्रॉ होगा और फिर उसके साथ सॉरी
वहां पे उसके साथ उसका बॉडी भी होगा, लाइक जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दीदी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बॉडी जरूरी नहीं होता। हाँ, मतलब लाइक अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बॉडी होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में बॉडी नहीं होता है, एंड इंटरफेस में मेथड होता है, बट इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं उसमें बॉडी नहीं होता है। ठीक है दीदी। ठीक है।